Good evening to all. We've all gathered here on a expiry evening. Thanks to all of you for coming. And I welcome Mr. Ashish Kyal on board. Thank you, sir, for coming to us for this learning session. And it will be great, I think, for all the participants to be learning from you. I just wanted to introduce ऐसे आशीष जी doesn't need any introduction. आशीष मैं हिंदी में बोलूँगा क्योंकि आशीष जी का कोई introduction ज़रूरी नहीं है. We have all seen him on CNBC, ET Now, TV आवाज़, CNBC आवाज़, जी बिजनेस पे सभी जगह पे हमने उन्हें देखा है, सुना है. तो जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. ही इज़ द ऑथर ऑफ इंटरनेशनल बुक named Effective Trading in Financial Markets Using Technical Analysis, which has been launched globally. वो फाउंडर हैं वेव स्ट्रैटेजी एडवाइजर्स वेव स्ट्रैटेजी डॉट कॉम के, विच इज़ अ सेबी रजिस्टर्ड इंडिपेंडेंट रिसर्च कंपनी. और आशीष ख्याल ट्रेडिंग गुरुकुल के भी वो फाउंडर हैं. ही इज़ basically a chartered market technician, which we can call, and member of CMT Association, and from USA. Ashish is also an MBA. So and basically he's been featuring on CNBC TV 18, ET Now, CNBC आवाज़ जो मैंने पहले बोला. And he'll be taking us through his way of trading, his way of technical analysis, and we are glad to have you here, sir. First, again, I'm telling you. So, our sub brokers, our clients, and people who have joined us as guests will be happy to have assistance from you for 3 days. So, this will be a 3 day workshop, and I think we all will benefit and will be a regular attendee to the all 3 days. So let us not waste time, and I'll hand over and thank you for NSC. NSC is and Kumarji has done this webinar together, and thanks a lot to NSC for making this possible. Thank you, NSC. Nainesh Bhai is here with us from NSC. So I hand over to Ashish Bhai, and thank you so much for all to attend this seminar, and I'll hand over to Ashish Bhai for the next round. Thank you. Thank you very much, Shivam. And it's always pleasure to be speaking here on the investor awareness drive, which we are going through NSE through your organization, Kuwarji. It's always pleasure to be doing that, and I'm sure these 3 days which we have uh, sufficient to nahi hai, लेकिन I will try to give my best possible things जितनी मेरी learnings है over the period of time. So I'll be giving the best that I have. So I'll quickly share across my presentation. Before that, am I audible and clear enough right now? Perfectly fine, I think. Perfectly fine. Okay, fantastic. So I'm just going to share across my presentation and I'm going to hide myself so that आपका ध्यान divert ना हो मेरे video पे rather than on the presentation that we are doing. So just 1 second, let me turn off my cam. Okay, great. So over here I can clearly, I'm just checking. ठीक है, everything looks perfect. If you can see my slide, I just need a confirmation if you are able to see the slide here, which I am showing right now. Yeah, we can, sir. Okay, great. So welcome everyone. What we are doing today is about trading systematically, scientifically using simple method. हम जो भी करने वाले हैं अभी बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे और बहुत ही अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि मे बी काफी सारे जन जो आज है उन्हें पता होगा कैंडल स्टिक क्या होता है, किस तरीके से देखना चाहिए, कैसे रीड करना चाहिए, लेकिन जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ उस तरीके से शायद आपने कभी देखा नहीं होगा बाजार को. एंड यस, एज शिवम सेड दैट वेलकम ऑन द एक्सपायरी डे. आई एम सेइंग एक्सपायरी ऑफ द मार्केट just to clarify. Okay, so I'm going to also share across my experience as a trader, as a mentor over the period of time. I'm going to do that in this program. And if you have doubts or queries, we will take it later on intermittently, because I will not be able to, see your screen, what you are seeing right now, or take your doubts intermittently. We will do that as and when we progress. So let me just very quickly move ahead now. Wave Strategy Advisors is an independent research company that caters to providing research using technical analysis only across commodity, global markets, equities, forex, everything.
एंड आपने अगर मुझे सुना होगा, आई हैव बीन स्पीकिंग एट लॉट ऑफ प्लेसेस एट NIBM इन पुणे, आई वाज स्पीकिंग एट NSE अबाउट few weeks back. I was speaking at I speak at CMT, which is CMT Association US, a lot of places, and I use from the most basic technical analysis method to the most advanced methods of technical analysis involving Elliott wave, Neo wave, timing the market using time cycles. ये भी हमारा एक मॉड्यूल जो हम करने वाले हैं वो डे 3 पे सैटरडे को है, which is timing the market using time cycle. About me, I'm not going to spend time on this. Shivam has already introduced, and thanks for that. You can see me. I have won a lot of game shows on CNBC TV 18 with a huge margin compared to other participants. So this was on CNBC TV 18. I have won a lot of shows on CNBC आवाज. ये जो ट्रेड शो होता है, बुल्स आई होता है, खिलाड़ी नंबर 1 होता है, वो शोज है. द रीजन आई एम शोइंग दिस इज टू एंश्योर टू यू अंडरस्टैंड कि मार्केट में ऐसा कुछ है जो चलता है और टिप्स के अलावा. ओके, सो काफी बार क्या होता है, हमें कहीं से टिप आ जाती है, कहीं से कुछ सुनने में आ गया, किसी फ्रेंड ने बता दिया, एंड वो स्टॉक हम लेते हैं, उसके बाद हमारे लेने के बाद ही वो स्टॉक नीचे जाता है. ऐसा लगता है कि कोई बैठा है जो देख रहा है कि हम हमारी वेट कर रहा है कि हम जैसे ही लेंगे वो स्टॉक को नीचे करना है. ऐसा होता है बहुत बार. आई एम श्योर यू माइट बी फेसिंग समथिंग लाइक दिस हैपनिंग. लेकिन ये आपके साथ ही नहीं है, हर एक ट्रेडर के साथ है, क्योंकि हम जहां पर पोजीशंस इनिशिएट करने की सोचते हैं, मे बी वो रेजिस्टेंस लेवल है. जहां पर हमें इनिशिएट नहीं करना है वो एक रेजिस्टेंस लेवल है और हम वहीं पे इनिशिएट करने के लिए सोचते हैं. सो लॉट ऑफ दोस थिंग्स, so उसके बारे में हम वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वेबिनार दैट वी आर गोइंग टू डू. आई हैव रिटन फॉर economic time section of Navbharat Times and Prajnan, which is an economic paper. And we are SEBI registered firm. This is the registration number, and this is purely an investor awareness drive that we have right now. We are not recommending any kind of a stock. We are not trying to say you to buy or sell this. Please use this as a learning perspective, purely from learning perspective only. So यहाँ पर if you can see that what I have shared across is one of the best lessons you can learn in life is to master how to remain calm. ये खाली लाइफ के लिए नहीं, मार्केट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम जो मिस्टेक्स करते हैं ट्रेडर्स, दोज मिस्टेक्स यूजुअली हैपेंस व्हेन दे आर वेरी इम्पल्सिव. ओके, that is very very important for you to understand. Because of your impulsive behavior, you end up doing what is contrary to be required to be done. सिंपल भाषा में अगर बोला जाए, अगर हम इम्पल्सिव है, सो फॉर एग्जांपल आज रिलायंस का एजीएम था ना, बहुत सारे जन, आज एक्सपायरी भी थी ना, बहुत सारे जन रिलायंस के एजीएम में जस्ट बिकॉज रिलायंस का एजीएम है दे आर बुलिश. होता है ना कि भाई रिलायंस का एजीएम में कुछ तो अच्छा ही आएगा इसलिए बुलिश है, और हम जाके वो स्टॉक को बाय कर लेते हैं. लेकिन आपने सुबह से रिलायंस के शेयर के चार्ट पे नजर अगर डाली होगी, आपको क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि बाइंग इमर्ज हो ही नहीं रही थी पूरे दिन में. वी आर गोइंग टू लुक एट दैट चार्ट ऑल्सो, बट अगेन आई एम रिपीटिंग द रीजन we are picking up Reliance is because there was some news around it today with respect to AGM, but we are not recommending you to buy or sell that. And it's very very important that we also look at these techniques in a very correct fashion. क्या हो क्या गया आजकल कि हर दूसरा जन बोलता है कि मैं टेक्निकल एनालिसिस प्रैक्टिस करता हूं, so you will have to evaluate whether that person is doing it correctly, and if yes, what are his credentials. Credentials मतलब है कि क्या बैकग्राउंड है, is he talking sense. if yes, see, logically correct तो हर जन बात कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, डोंट टेक मी रॉन्ग, बट अगर मैं आपको बताऊं कि अगर ओवरऑल कोई न्यूज आई, रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद में अगर स्टॉक प्राइस ऊपर है, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस 3.5% ऊपर है रिजल्ट आने के बाद, तो आपको क्या लॉजिकली करेक्ट न्यूज मिलेगी कि बिकॉज द रिजल्ट्स अनाउंस्ड आर एक्सेप्शनली गुड, बिट्स द मार्केट एक्सपेक्टेशन, दैट्स व्हाई द स्टॉक प्राइस इज रैलिंग. वही अगर स्टॉक प्राइसेस नीचे होता रिजल्ट आने के बाद, तो क्या होता, फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस फॉर द कमिंग ईयर लुक्स टू बी weak, and that's why Infosys shares are down. So news will change basis of the market movement. Same thing, last week में Fed की meeting थी, they hinted that they might start increasing the interest rate into 2021 2022. They hinted that,
आइडियली वो न्यूज के बाद में मार्केट को करेक्शन होना चाहिए था, लेकिन मार्केट फिर भी रैली हुआ। तो होता क्या है कि अगर आप खाली न्यूज पे ही फोकस रखेंगे और उसके बाद में आप डिसीजन लेंगे, तो वो बहुत इंपल्सिव डिसीजन हो सकता है, दैट कैन नॉट बी अ करेक्ट डिसीजन दैट यू कैन मेक। So it's important you also look at the chart, and that is what we are going to do this in 3 days. So ये 3 दिन का प्रोग्राम है। आज हम ट्रेडिंग यूजिंग कैंडलस्टिक एंड बॉलिंगर बैंड्स करने वाले हैं, एंड लेटर ऑन वी आर गोइंग टू बी लुकिंग एट trading using along with time cycles also. We are going to see, we are going to look at RSI, MACD, all of those methods. We are going to be doing that. So चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल चार्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दिस इज वन सिंपल चार्ट दैट आई एम कीपिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आई जस्ट वांट यू टू थिंक कि इस चार्ट को देख के आपको क्या लगता है कि कहां पर है ट्रेंड। सी, it is always said that you should be trading in the direction of the trend. I will talk about candlestick, I will talk about Bollinger Band, but first and foremost thing that you need to understand is you need to first understand what is the overall trend of the market, and you have to trade in the direction of the trend of the market. होता क्या है, हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना चाहते हैं, and if we सर trade सॉरी, against, आशीष जी सॉरी टू yes, इंटरप्ट, एक थोड़ा मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था वो हिंदी का, तो अगर 100% हिंदी में रख सकेंगे तो sure sure चलेगा, चलेगा। definitely I'm थैंक यू, perfectly fine, थैंक यू चलेगा, सर, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। तो मैं हिंदी में बात करूंगा अभी। अगर आप इस चार्ट को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो ट्रेंड है बाजार का, वो पॉजिटिव है। ये एक निफ्टी का चार्ट है। ये निफ्टी का हो कि कोई भी स्टॉक का हो, एनीथिंग, एनी चार्ट दैट यू आर लुकिंग एट, यू कैन सी दैट, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक वे ऑफ लुकिंग एट एनी चार्ट एज अ ट्रेडर। लोग क्या है कि people look at something like this and say नहीं, ये तो टेक्निकल एनालिसिस, आई विल नॉट डू इट। बट इट्स नॉट टेक्निकल एनालिसिस, इज इट ओनली, ये खाली एक रिप्रेजेंटेशन है कि प्राइस मूवमेंट कैसे हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें अगर आपको एक चीज समझ में आएगी, वो ये है कि यहां से प्राइस शुरू हुआ, went up, and if you look at it, every dip has been bought into, एंड आई एम श्योर आप एग्री करेंगे कि मार्च के बाद में हर एक डीप, हर एक फॉल जो आया, उसके बाद में मार्केट में बाइंग इमर्ज हुई। नाउ सेम थिंग इज वैलिड इवन फॉर टुडे। जो भी हुआ, डिप आया एंड बाइंग इमर्ज हुई। ये कैसे पता चलता है कि ये बाजार अब ट्रेंड में है? इसका एक सिंपल वे है जिसे हम कहते हैं डाउ थियरी। तो वो सिंपल वे क्या बताता है कि अप ट्रेंड का मतलब क्या? अगर आप डाउ थियरी थोड़ा समझेंगे, फिर हम कैंडल्स पे जाएंगे। इसमें ये पता चलता है कि अगर बाजार में या स्टॉक में या इंडेक्स में हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज हायर हाई एंड हायर लो फॉर्मेशन। हायर हाई का मतलब हुआ ये वाला हाई इज अबाव प्रीवियस हाई, और ये वाला लो प्रीवियस लो के ऊपर है। तो अगर ये हाई प्रीवियस हाई के ऊपर है और ये लो प्रीवियस लो के ऊपर है, तो हम इसे कहते हैं हायर हाई और हायर लो। यहां पर अगर मैंने लोस को कनेक्ट कर दिया, तो इसे हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। अभी सोचने वाली बात यह है कि बाजार हमेशा वो ट्रेंड लाइन के पास में आता है और वहां से बाइंग इमर्ज होती है। तो ट्रेंड लाइन के पास आके यहां से बाइंग इमर्ज हुई, यहां से हुई, यहां से आप देखेंगे कि मल्टीपल टाइम्स मार्केट यहां से बाउंस बैक हुआ। इसका मतलब इस लाइन को हम बोल सकते हैं डिमांड लाइन। ठीक है, डिमांड, या यहाँ तेजी करने वाले बैठे हुए, ठीक है। इसके पैरेलल मैंने एक ऊपर एक लाइन बना दी जो यहां से बार बार रिवर्सल हुआ, वहां पर बना दी। इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस लाइन। अभी आप डिमांड लाइन बोल दो या सपोर्ट लाइन बोल दो, दोनों का मतलब सेम ही है। और ऊपर हम कहते हैं रेजिस्टेंस लाइन। रेजिस्टेंस लाइन का मतलब है यहां पर बाजार आता है और यहां से मल्टीपल टाइम्स रिवर्स होने की गुंजाइश है, जो हमें देखने को मिलती है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन के बीच में बाजार की मूवमेंट होती रहती है। नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली इज व्हेन द मूवमेंट इज बिटवीन द रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन के बीच में,
आपको अपना स्टैंड चेंज कब करना है? जब भी बाजार ये एक तो पहला वार्निंग सिग्नल कब मिलेगा? जब ये सपोर्ट लाइन ब्रेक हो गई, खाली इसी के ऊपर ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ट्रेंड चेंज का कंफर्मेशन कब मिलेगा दूसरा? ये होने के बाद में जब प्राइसेस ऊपर गए और फिर से जब रिवर्स नीचे हुआ, तब हमें पता चलेगा कि इसने अभी लोअर हाई और लोअर लो बनाए। लोअर हाई और लोअर लो से पता चलता है कि बाजार का जो ट्रेंड था वो फिलहाल अभी चेंज हो चुका है और बाजार में शायद फॉल आ सकता है। यही चीज अगर हम हिस्ट्री सी चार्ट मतलब क्या है? आपको यहाँ पर प्राइस स्केल दिख रहा है राइट साइड पे, ये पूरा प्राइस स्केल है और नीचे टाइम स्केल दिख रहा है, यहाँ पर पूरा टाइम है। हमने प्राइस राइट में प्लॉट कर दिया और टाइम नीचे प्लॉट कर दिया। अभी अगर आप यही चीज को अपनाएंगे और देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, मार्च के फॉल के पहले, मार्च 2020, ये एक वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट का मतलब होता है, मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि वीकली चार्ट या वीकली कैंडल क्या होता है। वीकली चार्ट मतलब होता है कि मंडे बाजार ओपन हुआ 14,000 पे, तो एक लेवल आ गया 14,000 का। उसके बाद में 14,200 का हाई बना ड्यूरिंग द वीक, तो ये कैंडल हम फॉर्म करते हैं, इसको एक कैंडल बोलते हैं। ओपन हुआ 14,000 पे मंडे को, क्लोज हो गया 14,200 पे फ्राइडे को, और हाई बनाया समझो यहाँ पर 14,250 पे, और लो 14,000 के थोड़ा नीचे बना। तो ये मंडे ओपन हुआ और फ्राइडे क्लोज हुआ, ये बन गया हमारा वीकली चार्ट। वीकली का मतलब ये पूरे वीक का कैंडल है। पूरे वीक के कैंडल में काफी सर्कस हुआ होगा ऊपर नीचे, तो वो हम नहीं इग्नोर कर रहे, लेकिन ये वीक की कैंडल है, तो ये कोई भी वीक आप कंसिडर कर लीजिए। समझिए जून के वीक, जून का फर्स्ट वीक है, इससे साथ में हम दूसरी कैंडल बनाएंगे जून के सेकेंड वीक की, जून के थर्ड वीक की, तो एक वीकली चार्ट रेडी हो जाता है। नाउ अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ से आपको ये पता चलता है कि जब भी यहाँ पर मार्च का जब हाई बना, ठीक है, फरवरी में जनवरी में हाई बन चुका था, उसके बाद एक फॉल आया, बाद में जब पुल बैक आया मार्केट में, ये हाई, क्या मैं बोल सकता हूँ ये हाई प्रीवियस हाई के नीचे है? ओके, एंड यहां पर लो ब्रेक हुआ, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये लो प्रीवियस लो के भी नीचे है। तो इसका मतलब हुआ यहां पर जो लो बना ये प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, तो बाजार ने लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन कब बना दिया था? ये हाई बनाने के बहुत ही नजदीक, यहाँ पर हमें 11,500 के आसपास या 11,700 के आसपास डायरेक्टली वार्निंग सिग्नल मिल चुका था कि बाजार यहां से नीचे जा सकता है। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशंस है तो आपको कॉशियस रहना है या एग्जिट करना है। ये सिंपल मेथड है देखिए, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव मेथड यहां पर बना है, जिसके कारण आप पूरे फॉल में अगर ट्रेडर हो तो आप डाउनसाइड ट्रेंड को राइड कर सकते हो, और अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप एटलीस्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हो कि आपको नुकसान नहीं होगा, या आप एटलीस्ट समथिंग, आपने बोलते हैं ना कि यू हैव टेकन समथिंग ऑफ द टेबल, आपने कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया या पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया। इसके कारण काफी सारी चीजें आपको स्ट्रीमलाइन हो सकती है। अभी आपको एग्जिट करने के बाद एंटर कब करना था? जब यहां पर ऊपर का मूव आया, ये यहां एंटर नहीं करना था, फिर से एक फॉल आया, ये बना एक लो, ये था प्रीवियस लो, और यहां पर अगर आपने एंटर किया होता इस कैंडल पे, तो यहां पर बन गया हाई विच इज अबाउ प्रीवियस हाई, तो ये हाई प्रीवियस हाई के ऊपर है, तो ये लो प्रीवियस लो के ऊपर है। तो जहां यहां आपने एग्जिट किया, उसके सामने यहां पर आपने एंटर किया, और बहुत सारा जो स्टॉक्स गिरे थे बहुत शार्पली, आप उन स्टॉक्स के बाहर होते, और एग्जैक्टली जब ट्रेंड ऊपर शुरू होने वाला था, जस्ट उसके पहले आप इस स्टॉक के या इस इंडेक्स के या जो भी आप ट्रैक कर रहे हैं उसके वापस से एंटर होते। तो ये एक सिंपल मेथड जो हम कह रहे, ये मेथड को कहते हैं डाउ थियरी। हायर हाई हायर लो से पता चलता है ट्रेंड ऊपर का है, लोअर हाई लोअर लो से ट्रेंड नीचे का है। तो कैंडल जो हम प्लॉट करें, मैंने आपको कैंडल के बारे में भी बताया कि कैंडल को किस तरीके से प्लॉट करना चाहिए।
अगर वही चीज मैं वीकली नहीं करके अगर डेली कैंडल पे जाऊं, तो डेली चार्ट अगर आप देखेंगे, तो डेली चार्ट पे ये कैंडल आज सुबह कहाँ ओपन हुआ, कहां पर हाई बना, वो पता चलता है, और लो, क्लोज, सब। तो ये चारों इंफॉर्मेशन मुझे कैंडल के चार्ट पे देखकर समझ में आती है। तो थोड़ा सा कैंडल स्टिक के बारे में अभी जानते हैं। तो एक चीज क्या पता चली हमें इधर, कि हमें ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, और ये ट्रेंड प्राइमरी ट्रेंड हम इसे कहते हैं। तो प्राइमरी ट्रेंड के साथ क्यों ट्रेड करना है? क्योंकि अगर प्राइमरी ट्रेंड के साथ में आप ट्रेड कर रहे हैं, भले ही आपका रिसर्च थोड़ा रॉन्ग हो गया हो, फिर भी पैसा बनता है। वो बोलते हैं ना कि विथ हाई टाइड ऑल द बोट्स राइजेस, मतलब अगर बड़ी टाइड आती है ओशियन के अंदर, सी में, तो अगर आप देखेंगे तो छोटी टाइड्स भी ऊपर जाती है। इसी से पता चलता है कि ओवरऑल आपको प्राइमरी ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करना है। और ये जो सेकेंडरी ट्रेंड में होता है, ये सेकेंडरी ट्रेंड जो नीचे करेक्शन है, ये सेकेंडरी ट्रेंड है। ये माइनर ट्रेंड, उसके साथ में माइनर ट्रेंड्स भी होते हैं जो बहुत छोटे ट्रेंड्स है। लेकिन जब सेकेंडरी ट्रेंड और प्राइमरी ट्रेंड सिंक में हो जाए, जैसे ये सेकेंडरी ट्रेंड नीचे का है, ये सेकेंडरी ट्रेंड ऊपर का है, तो जब ये सेकेंडरी ट्रेंड और प्राइमरी ट्रेंड दोनों सिंक में है, उस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा पैसा बन सकता है। ठीक है? क्यों ऐसा? क्योंकि जब नीचे का करेक्शन आ रहा है तो वो कम शैलो है प्राइस वाइज, और टाइम वाइज भी कम टाइम लिया है। देखिए, सिमिलरली यहाँ पर टाइम उसने ज्यादा लिया ये करेक्शन में, लेकिन प्राइस वाइज बहुत शैलो है कंपेयर्ड जो ऊपर की ओर गया था उसके कंपैरिजन में। तो आपको उस डायरेक्शन में ट्रेड करना है जहां प्राइसेस मैक्सिमम टाइम जाते हैं। तो ट्रेंड में ऊपर के साइड ट्रेड हो रहा है जहां मैक्सिमम टाइम प्राइसेस जा रहे हैं। ठीक है? नाउ अभी चलते हैं कैंडल स्टिक पे वापस। कैंडल स्टिक पे अगर आप देखेंगे, तो दिस वी कॉल एज एन ओपन, दिस वी कॉल एज अ क्लोज। इसे ओपन कहते हैं, इसे क्लोज कहते हैं। यहां पर इसे हाई बोलेंगे और इसे लो बोलेंगे, जो मैंने बताया। अगर सुबह ओपन होने के बाद में मार्केट में बाइंग है, पूरे दिन में अगर बाइंग है, तो हम इसे वाइट बॉडी बोलते हैं। बॉडी मतलब ओपन और क्लोज के बीच का जो भाग है, इसे हम बॉडी कहते हैं। तो इसमें व्हाइट का मतलब हुआ पूरे दिन में ओपन यहाँ हुआ और क्लोज यहाँ हुआ, मतलब बाइंग थी। व्हाइट हो सकता है, इसका कलर ब्लू हो सकता है, जो भी आपका कलर पसंदीदा कलर है आप वो डाल सकते हैं। नॉर्मली प्रैक्टिस में हम व्हाइट या ब्लू या ग्रीन यूज करते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका कैंडल बॉडी है ब्लैक। ब्लैक का मतलब है ओपन ऊपर हुआ, क्लोज नीचे हुआ। तो इसे ब्लैक कैंडल का मतलब कहते हैं कि पूरे दिन में सेलिंग प्रेशर था। ठीक है? अभी ये एक सिंपल कैंडल बन गई है, लेकिन अभी इसको देख के हमें कोई डिसीजन नहीं लेना है कि भाई मार्केट में बाय करना है कि सेल करना है। हमें खाली मार्केट के बारे में समझना है फिलहाल। अभी अगर हम आगे चलते हैं, ये पैटर्न है। इसके चलने के पहले मैं एक चार्ट ओपन कर लेता हूँ रिलायंस का। और आप रिलायंस का ओपन मैं इसीलिए कर रहा हूँ चार्ट, जैसे कि मैंने बताया कि आज पूरे दिन में रिलायंस चर्चा में था, न्यूज थी, एजीएम था। उसके कारण पूरे दिन में रिलायंस पे कुछ ना कुछ लोग डिस्कशन कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि भाई पूरे दिन में बाजार में ओवरऑल रिलायंस के स्टॉक में ओवरऑल बाय कर सकते हैं, पैसा बनेगा, कि सेल करके पैसा बनेगा, किस तरीके से आज के दिन में पैसा बन सकता है। तो रिलायंस का मैं अभी एक सेकंड में चार्ट शेयर करता हूँ मेरी स्क्रीन आपके साथ में, जस्ट अ सेकंड। ठीक है? और ये रहा स्टॉक। ये मैंने चार्ट ट्रेडिंग व्यू पे इसलिए ओपन कर रखा है क्योंकि सिंपल प्लेटफॉर्म है। इन्वेस्टिंग व्यू, investing.com पे कर सकते हो, tradingview.com पे कर सकते हो, आप जहां करना चाहे कर सकते हो। हम रिकमेंड नहीं कर रहे कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, और ना ही हम वो प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे हैं। हम ये यूज करें बिकॉज ये फ्रीली अवेलेबल है, और ज्यादातर लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं इसी के कारण। तो आपको जो सॉफ्टवेयर यूज करना है, कुंवर जी के पास एक सॉफ्टवेयर भी है जिसमें ये सब चीजें ऑलरेडी की जा सकती है, तो आप वो सॉफ्टवेयर यूज करिए क्योंकि बहुत रिलायबल है। ऑलरेडी वो प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल है, तो वो सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं। उसके बारे में बाद में आज या कल में
वो थोड़ा बताएंगे भी कि कैसे उस पे आप बॉलिंगर बैंड्स, कैसे कैंडल स्टिक प्लॉट कर सकते हैं, वो भी आप ये सेशन के बाद में थोड़ा डिस्कशन होगा। तो अगर हम रिलायंस के चार्ट पे, डेली चार्ट पे चलते हैं पहले। डेली चार्ट पे अगर मैं जाके देखूं, ओवरऑल मैं रिलायंस के चार्ट पे जाके देखूं, डेली की कैंडल, कल के दिन की कैंडल, आज की नहीं, कल के दिन की कैंडल अगर हम देखेंगे तो रेड कैंडल थी। ठीक है, आप एग्री करेंगे कि कल के दिन की कैंडल जो रिलायंस पे थी वो एक रेड कैंडल बनी हुई थी ना। कल के दिन पे अगर रेड कैंडल थी, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही सिंपल है। इसमें एक और चीज आपको देखनी है कि ये कैंडल की जो हाई है वो प्रीवियस कैंडल के हाई के नीचे है, तो यहां से क्या मैं बोल सकता हूँ ये कैंडल लोअर हाई था। सिमिलरली इस कैंडल का जो लो है वो प्रीवियस कैंडल के नीचे है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ ये लोअर लो भी है। तो क्या मैं डेली कैंडल पे देख के ये बोल सकता हूँ कि ओवरऑल ट्रेंड रिलायंस का कल तक, आज का नहीं, कल तक सेल में था। डेली पे इंट्राडे, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो आपको आज के दिन में बाय करके पैसा कमाना है कि सेल करके कमाना है, वो आपको ऐसे पता चलेगा। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो आपको बड़ा ट्रेंड देखना होगा, अगर आप इन्वेस्टर है तो आपको वीकली चार्ट देखना होगा। तो होता क्या है, इन्वेस्टर निवेश करता है 2 साल के लिए और ऊपर नीचे होता रहता है डेली का चार्ट देख के। वो एक गलत तरीका है, बिकॉज आप अगर निवेश कर रहे हैं तो और 2-3 साल का होराइजन है, तो आपको वीकली चार्ट देखना है, आपको बड़ा टाइम फ्रेम देख के रखना है, और उसमें 2% 4% ऊपर नीचे होता है तो उसमें आपको ऊपर नीचे नहीं होना है। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो आप अगर वीकली चार्ट देख के निवेश या ट्रेड करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। आपको डेली कैंडल देखनी है, आपको आवरली कैंडल भी देखनी है, आपको 15 मिनट्स कैंडल भी देखनी है। अगर आप इंट्राडे में ले रहे हैं और बेच रहे हैं, इंट्राडे का मतलब है अभी लिया 2 घंटे बाद बेच दिया। तो अगर आप इस चार्ट को देख रहे हैं, इसमें देख के पता चलता है कि ओवरऑल रिलायंस सेल में था। तो अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मिल चुकी है तो मैं आज के दिन में सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोअर हाई लोअर लो बना चुका है। अभी अगर हम आवरली चार्ट पे चलते हैं, आवरली चार्ट पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना जो मैं आपको बता रहा हूं इस चार्ट के ऊपर। ये जो कैंडल बनी थी ये बनी थी 23 तारीख को सुबह 9:15 बजे। ये वाली कैंडल अगर आप देख पा रहे, 23 तारीख को सुबह 9:15 बजे ये बेरिश रेड कैंडल बनी थी। लेकिन अगर आप देखें एक चीज को, यहां पर जहां टॉप बना रिलायंस में, इस लेवल के टॉप के बाद में यहां पर जब क्लोज नेगेटिव हुआ, इस कैंडल के बाद में एक भी क्लोज मैं मार्क कर देता हूं जिससे आपको समझने में थोड़ा इजी हो जाए कि कौन से लेवल की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर से मैं इस लेवल की बात कर रहा हूं कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो क्लोज हुआ उसके बाद में नीचे का ट्रेंड चालू था रिलायंस में कंटिन्यूसली। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस पूरे डाउन ट्रेंड में एक भी कैंडल, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, एक भी कैंडल प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज नहीं की है। एक भी कैंडल प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज नहीं की है, खाली वो आउटसाइड कैंडल है तो ऐसा हुआ है। आउटसाइड कैंडल क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो ये अगर एक कैंडल है, एक सेकेंड यहां पर हम प्लॉट करते हैं। यहां पर अगर, ठीक है चलिए, प्लॉट नहीं हो पा रहा है, मैं आपको यहां पर बताता हूं। अगर आप ये कैंडल देखेंगे, इसका मतलब है लोअर हाई और लोअर लो। ठीक है, अभी दूसरा कैंडल अगर आप ये देखेंगे, ये कैंडल होता है इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल का मतलब होता है इस आज के दिन का हाई प्रीवियस हाई के नीचे है, आज के दिन का लो प्रीवियस लो के ऊपर है। और अगर आप ये कैंडल देखेंगे, इसे कहते हैं आउटसाइड कैंडल। आउटसाइड कैंडल का मतलब है कि आज का हाई प्रीवियस हाई के ऊपर है और आज का लो प्रीवियस लो के नीचे है। तो
आउटसाइड कैंडल और इनसाइड कैंडल में कुछ ट्रेंड चेंज नहीं होता है। ट्रेंड चेंज कब होगा? जब हम देखेंगे कि ये वापस जो कैंडल बनी, इसका हाई प्रीवियस हाई के ऊपर है और इस कैंडल का लो प्रीवियस लो के ऊपर है। तो इससे पता चलता है कि यहां पर ट्रेंड चेंज हुआ। समझ में आया? सिंपल लॉजिक। इसका मतलब अगर ये आउटसाइड कैंडल बनी या एक इनसाइड कैंडल बनी तो ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ। रिवर्स कब होगा? जब हम एक क्लोज देखेंगे जो प्रीवियस हाई के ऊपर है। अगर यही कंसेप्ट मैं रिलायंस के आवरली चार्ट पे लगाऊं तो अगर आप देखेंगे पूरे के पूरे ट्रेंड में एक भी क्लोज प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं किया है इस स्टॉक ने। आवरली चार्ट की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर आप बोलेंगे कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी इधर क्लोज प्रीवियस हाई के ऊपर हुआ, लेकिन ये एक आउटसाइड कैंडल है। आउटसाइड कैंडल का मतलब देख रहे हैं आप? इसका हाई इसके हाई के ऊपर है, इस कैंडल का लो इस कैंडल के लो के नीचे है। तो आउटसाइड कैंडल में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बराबर है। ट्रेंड चेंज कब होगा? ट्रेंड चेंज होगा जब भी हम एक कैंडल देखेंगे, जो कैंडल अभी का जो कैंडल बनी है इसके ऊपर क्लोज होगा। अगर हमें क्लोज मिलेगा इस लेवल के ऊपर, तब हम जाके बोलेंगे कि ओवरऑल ट्रेंड चेंज हुआ है। सो हमें क्लोज इस हाई के ऊपर चाहिए और ये लो प्रीवियस लो के ऊपर चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये स्टॉक में शायद बाइंग इमर्ज हो सकती है। सोचो, इतनी सिंपल टेक्निक है ये। कैंडलस्टिक तो हर कोई जन सिखाता है। कैंडलस्टिक के बारे में आप गूगल पे भी पढ़ सकते हैं, वो मैं बताऊंगा भी आपको। लेकिन ये जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत कम जन आपको बताएंगे और यही चीज इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर के लिए भी, ट्रेडर के लिए भी। और स्विंग ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर अगर आप करते हैं या ऑप्शंस में आप ट्रेड करते हैं, कोई भी चीज के लिए ये चीज सबसे ज्यादा सिंपल है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हमने क्या समझा कि अगर डेली चार्ट पे जाएंगे, अगर आप थोड़ा पोजिशनली ट्रेड कर रहे हैं, रिलायंस का ट्रेंड चेंज होने के लिए मुझे इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज चाहिए। ये कैंडल का हाई है 2214 रुपया 60 पैसा, मतलब 2215 के ऊपर अगर बंद हुआ तब जाके रिलायंस का ट्रेंड पॉजिटिव होगा। ठीक है, नहीं तो फिलहाल ये स्टॉक सेल में है। यही कंसेप्ट को हम अभी अप्लाई करेंगे निफ्टी पे। मैंने रिलायंस इसलिए लिया था क्योंकि ये मेरा, इसलिए नहीं लिया कि ये मेरा पसंदीदा स्टॉक है या मुझे ये अच्छा लगता है या ये स्टॉक पे करना चाहिए या कुछ करना चाहिए, नहीं। मैंने रिलायंस इसीलिए खाली लिया क्योंकि ये स्टॉक पे आज कुछ न्यूज थी एजीएम की, तो वो बेसिस पे हम ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी मैं वापस से ट्रेडिंग व्यू फिर से ओपन करता हूँ, जस्ट टू शो कि कैसे आपको चार्ट सिलेक्ट करना है यहाँ पर। ये ऑलरेडी बना हुआ आ रहा है, तो एक काम करता हूँ मैं आपको इन्वेस्टिंग पे दिखा देता हूँ। दोनों प्लेटफॉर्म सिमिलर है, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। और जो प्लेटफॉर्म पे हमारे पास में अवेलेबल है कुवर्जी पे, दैट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। वो उस पे आप करेंगे तो आपको बहुत ही सिंपल नजरिए से आप वो प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने मार्क्स हाइड कर दिए, डेली चार्ट है। यहाँ पे अभी मैं डाल देता हूँ निफ्टी। अभी निफ्टी पे अगर हम ओवरऑल मंथली चार्ट पे नजर डालें, वही कंसेप्ट में देखिए इन्वेस्टर्स के लिए भी है, ट्रेडर्स के लिए भी है और मीडियम टर्म पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए भी। मंथली चार्ट है ये निफ्टी का। ट्रेंड शुरू कहां से हुआ वो देखिए आप, यहां पर से। इसके बाद में एक भी कैंडल, सोचिए, प्रीवियस मंथ के नीचे बंद नहीं हुआ है। ब्रेक भले ही हुआ हो, जैसे इस कैंडल में प्रीवियस मंथ का लो ब्रेक हुआ था, लेकिन क्लोज नहीं हुआ है। एक भी कैंडल प्रीवियस मंथ के नीचे क्लोज नहीं हुआ है, भले ही कितना भी न्यूज आ जाए। अभी हर जन बोल रहा था कोविड है, कोविड इंक्रीज हो रहा है, कोविड 2 आ गया, कोविड 3 आ रहा है।
लेकिन बाजार अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी फ्यूचर को डिस्काउंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक भी मंथली कैंडल प्रीवियस मंथ के नीचे नहीं है। जिस मंथ में एक कैंडल प्रीवियस मंथ के नीचे होगा उसमें आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई कुछ तो चेंज हो रहा है। यही कंसेप्ट अगर आप देखेंगे, जनवरी के महीने में एक ब्रेड कैंडल बनी, लेकिन मेन कैंडल नेक्स्ट मंथ में फरवरी के महीने में आप देखेंगे यहाँ पर जिसने बेरिश कैंडल बनाई जो प्रीवियस मंथ के नीचे थी। तो यहाँ पे वार्निंग साइन मिल गया था। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी इन्वेस्टमेंट पोजीशन आप निकाल दीजिए यहाँ पर, लेकिन वार्निंग साइन मिल गया था आपको मंथली चार्ट पे कि कुछ हो सकता है। अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे और यही कंसेप्ट आप अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर लो बना था 14,240 के आसपास का लो था, कुछ 14,151 का लो था, 14,151। इस लो पे से वीकली चार्ट में आपको बता रहा हूं, अभी तक आज तक प्रीवियस वीक के नीचे मार्केट ने बंद नहीं किया है अभी तक। क्या मैं बोल सकता हूं ये इतना सिंपल है और इतना अमेजिंग वर्क करता है। जिस वीक में प्रीवियस वीक के नीचे बंद हो जाए उस वीक में आपको कॉशियस हो जाना है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर बाय करके चल रहे पोजीशंस को एक बार स्क्वायर ऑफ करिए, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर से अगर क्लोज नेक्स्ट वीक में ऊपर होता है तो फिर से आप एंटर करें। उससे क्या होगा कि अगर बड़ा फॉल आने वाला है, बड़ी गिरावट आने वाली है, आप उसके पहले ही मार्केट के बाहर हो जाएंगे और वापस से अगर ट्रेंड रिवर्स हो गया तो फिर से निवेश कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं ये कंसेप्ट को। तो अगर आप देखेंगे तो कॉन्जिक्यूटिव करीबन 8 हफ्ते हो चुके हैं, 8 से 9 हफ्ते हो चुके हैं और बाजार में एक भी कैंडल ने प्रीवियस वीक के नीचे क्लोज नहीं किया है। ये ध्यान रखिए, क्लोज नहीं किया वीकली कैंडल। सिमिलरली अगर यहाँ से ट्रेंड जब शुरू हुआ था फरवरी में, जो नवंबर में ट्रेंड शुरू हुआ था वीकली, निफ्टी ने शुरुआत की थी इस पॉजिटिव ट्रेंड से 11,900 के आसपास। वहां से चल के इस कैंडल तक करीबन 14,200 तक अगर आप देखेंगे पूरे वीक में, पूरे वीकली कैंडल्स में क्लोज नहीं किया प्रीवियस वीक के नीचे। तो इतना सिंपल और इतना पावरफुल मेथड आप ये कैंडल स्टिक के बेसिस पे, ट्रेंड के बेसिस पे आप अपना सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। अभी हम यहाँ से आगे चलते हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझते हैं। अभी तक हम ट्रेंड के बारे में समझ रहे थे, ओवरऑल कैंडल की क्लोजिंग के बारे में समझ रहे थे। अभी वीकली पे देखा, डेली पे भी अप्लाई मैं करके दिखा देता हूं आपको। डेली पे अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल बनी ग्रीन कैंडल, इसके बाद से अभी तक ये आउटसाइड कैंडल है। ठीक है, अभी फिलहाल हम रेंज में फंसे हुए, हमें यहाँ पे कोई भी ट्रेंड नहीं है। रेंज ब्रेकआउट कब आएगा हमारे पास? ये जो बड़ी कैंडल बनी है ना, इसका लो है 15,670, या तो उसके नीचे जाए, डेली कैंडल ये कल की है, या ये जो हाई बना था इस कैंडल का 15,860 उसके ऊपर। तो ये कैंडल के हाई या लो ब्रेक होने पे हमें पता चलेगा कि ट्रेंड कहां पर इमर्ज हो रहा है। वीकली पॉजिटिव है, मंथली पॉजिटिव है, डेली में अगर आज इसके ऊपर ब्रेकआउट आ जाता है कल के दिन में तो हमें पॉजिटिव रुझान ओवरऑल मिल सकता है। ठीक है, और आप अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है, सेम कंसेप्ट अप्लाई कर लिए। सुबह के दिन जब मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर पूरे दिन में आप देखेंगे कि भले ही रिलायंस ने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज नहीं किया, निफ्टी ने प्रीवियस लो के नीचे क्लोज नहीं किया। तो काफी जन जो बोलते हैं ना कि रिलायंस के कारण बाजार मूव होता है, वो गलत है। रिलायंस के कारण बाजार मूव होता था, फिलहाल नहीं होता है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पूरे दिन में निफ्टी ने एक भी प्रीवियस लो के नीचे, प्रीवियस आवर के लो के नीचे क्लोज नहीं किया, जहां रिलायंस ने कंटिन्यूअसली प्रीवियस आवर के ऊपर क्लोज नहीं किया। दोनों का ट्रेंड अपोजिट था आज के दिन में। और ये बहुत ही सिंपल तरीका है ट्रेंड फॉलो करने का। कोई भी चार्ट आप ले लीजिए, उसमें आपको ये चीज दिखने में आएगी। ठीक है, नाउ अभी हम चलते हैं ओवरऑल चार्ट पे, वापस से मेरे प्रेजेंटेशन पे मैं जाता हूं लेके आपको।
जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैंडल्स की कौन सी पैटर्न्स हमें पता होनी चाहिए। देखिए ऐसे तो बहुत सारी कैंडल पैटर्न्स होती है। अभी मेरे स्लाइड पे जैसे आप देख रहे हैं, इस पैटर्न को हम कहते हैं हैमर। हैमर का मतलब क्या हुआ? हैमर का मतलब हुआ कि ये एक हैमर जैसा दिखता है, इसलिए हम इसे हैमर कहते हैं। हैमर दिन के लो पे बन सकता है, ओवरऑल ट्रेंड। और ये एक जो छोटी बॉडी है, इसमें नॉर्मली क्या होता है, जो बॉडी आप देख रहे हैं, जो ग्रीन और रेड कलर की बॉडी आप देख रहे हैं, ये स्मॉल बॉडी है। स्मॉल बॉडी का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो ओवरऑल ट्रेंड था, वो ओवरऑल ट्रेंड पूरे दिन में ज्यादा कुछ हुआ नहीं, भले ही नीचे गया और ऊपर आया ट्रेंड, लेकिन पूरे दिन में मार्केट छोटी सी बॉडी बना के क्लोज हो गया। इसको एक रिवर्सल पैटर्न कहा जाता है। रिवर्सल पैटर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरे दिन में समझो, अगर ओवरऑल 10 दिन में सेलिंग है, आपको 11वें दिन ये कैंडल बनती है, तो ये कैंडल पे बाय नहीं करना है। इस कैंडल के बाद में जो कैंडल बनती है, अगर वो भी बुलिश बनी, तो वहां पर आपको बाय करके चलना है, क्योंकि वहां पर पता चलता है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रेंड मार्केट में वापस से इमर्ज हो रहा है। कैसे? देखिए इस चार्ट को। अभी ओवरऑल जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड था। आप एग्री करेंगे कि ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड था। उसके बाद में एक हैमर जैसा पैटर्न बना। हैमर मतलब छोटा बॉडी, जो टू मार्क कर रखा है हमने। ओके। और रियल बॉडी, जो बॉडी है हैमर की, वो रेड हो या ग्रीन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। इसके बाद में जब नेक्स्ट कैंडल ने हाई निकाला, जो ये आप देख रहे हैं, ये कैंडल जो है यहां पर, इस कैंडल ने हाई निकाल के क्लोज जो किया प्रीवियस हाई के ऊपर, तो आपको जो टेक्निक मैंने अभी तक बताई उससे कंफर्मेशन मिला, साथ में कैंडलस्टिक के पैटर्न से भी कंफर्मेशन मिला। क्लियर है? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। ओवरऑल ट्रेंड नीचे का था, उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी। ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद में हैमर बोलते हैं इसे, जो नंबर 2 करके हमने रिप्रेजेंट किया है। आपको हैमर पे बाय नहीं करना है, क्योंकि हैमर बता रहा है कि सेलिंग हुई दिन में, लेकिन बाद में बाइंग आ गई। कंफर्मेशन कब मिला? जब तीसरी कैंडल ने क्लोज प्रीवियस कैंडल के ऊपर किया, पहला कंफर्मेशन मिला। सेकंड हैमर के बाद में जो डाउन ट्रेंड था, वो डाउन ट्रेंड से पॉज हुआ और फिर रिवर्सल मिला। तो यहां पर आपको कंफर्मेशन मिला कि ओवरऑल जो ट्रेंड नीचे की थी, वो पॉज हुई और फिर ट्रेंड ऊपर की ओर रिवर्स हुआ। यहां तक क्लियर है? तो हैमर जो पैटर्न बनता है, ऐसे कैंडलस्टिक में बहुत पैटर्न है जो हम अभी देखेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है, क्योंकि इस पैटर्न के बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि कहां पर आपको एंटर करना है या कहां पर आपको एग्जिट करना है। सिमिलरली अगर ये पैटर्न बाजार के टॉप पे बनता है, इस टाइप का पैटर्न अगर बाजार के टॉप पे बनता है, तो उसे हम कहते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन का मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल ट्रेंड जो था वो बाजार में ऊपर का था, ऊपर के ट्रेंड पे एक हैंगिंग मैन बना। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि यहां पर समझो किसी ने, जो ट्रेडर ने यहां निवेश किया है, समझो बड़ा क्वांटिटी बाय कर रखा है यहां पर, ठीक है, ये कैंडल देखने के बाद में आपको लगता है वो नर्वस होगा? सोचो, आपको एक ट्रेडर के नजरिए से सोचना है। अगर आपने यहां पर बाय कर रखा है, ये कैंडल देख के आप नर्वस होंगे क्या? नहीं, क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं हुआ ना। लेकिन जिस दिन ये कैंडल बनी, ये कैंडल देख के क्या मैं बोल सकता हूं कि आप नर्वस हो जाएंगे? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं, प्रीवियस लो के नीचे मार्केट क्लोज भी हो गया, ओपन भी उसके लो के नीचे ही हुआ, प्रीवियस लो के नीचे यहां ओपन हुआ। तो यहां पर पता चलता है कि ओवरऑल जो रुझान था ऊपर का, वो चेंज होके नीचे का रुझान हो गया। ट्रेंड ऊपर से रिवर्स होके नीचे का हो गया।
तो आपको जो ट्रेडिंग पोजीशंस लेनी है वो इस कैंडल पे लेनी है, ठीक है। इस कैंडल के ओपन पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो क्लोज के पास भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्लोज में कभी कभी क्या हो जाता है कि बहुत दूर तक ऑलरेडी फॉल आ गया, फिर रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठता। तो इसके लिए रिस्क रिवॉर्ड समझने के साथ में आपको ट्रेडिंग पोजीशन लेनी है। सिमिलरली ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी कर सकते हैं। निवेश कर रहे हैं तो आप उसके बेसिस के लिए भी ये मेथड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमें खाली इसी को नहीं करना है, इसके साथ हम बॉलिंगर बैंड भी कंबाइन करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन और दो तीन पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। डोजी, डोजी का मतलब होता है बाजार जहां ओपन हुआ उसके आसपास ही क्लोज हो गया। तो बाजार अगर या तो ओपन हुआ इस लेवल पे, पूरे दिन में नीचे गया, बाद में काफी सारी चीजें हुई, ऊपर गया, लेकिन अल्टीमेटली क्लोज वहीं हो गया जहां ओपन हुआ, तो मतलब इसने क्या बना दिया जिसे हम कहते हैं डोजी कैंडल। अभी बहुत सारे जन खाली एक डोजी को देख के बुलिश और बेरिश हो जाते हैं। मैं बोलता हूँ यार, आज के दिन में हलचल ऊपर नीचे हुई, मार्केट क्लोज वहीं हो गया जहां ओपन हुआ, उसमें बदला क्या? कुछ भी नहीं। तो आपको लॉजिक भी अप्लाई करना है। यहाँ पर इस कैंडल को कहेंगे कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, खाली एक पॉज हो गया। जो ट्रेंड था वो ट्रेंड को पॉज किया मार्केट ने, ठीक है। तो अगर ऊपर का ट्रेंड था, ओवरऑल बाई ट्रेंड में था, यहाँ आने के बाद में एक पॉज हुआ। अगर नेक्स्ट डे मैं क्लोज इसके लो के नीचे करता हूं, तब मैं बोलूंगा कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हुआ है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, तीन स्टेप है। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप ट्रेंड ऊपर का है। सेकेंड स्टेप, हमें पॉज मिला, या तो हैमर बना या हैंगिंग मैन बना या डोजी बना। थर्ड स्टेप पे आपको पोजीशंस इनिशिएट आप कर सकते हैं अगर आपको दिख रहा है कि क्लोज बाजार का प्रीवियस लो के नीचे हो रहा है। तो अभी हमने क्या कर लिया, हमने जो पहली टेक्निक सीखी जस्ट थोड़े समय पहले, वो टेक्निक अप्लाई की। साथ में हम अभी कैंडलस्टिक के पैटर्न को भी अप्लाई कर रहे हैं। समझ में आया? बहुत ही सिंपल नजरिए से जब हम कर रहे हैं, वो बहुत सिंपल टेक्निक से बात कर रहे हैं। ये चार्ट है, हम प्रैक्टिकल चार्ट पे जाके देखेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। उसके पहले मैं एक और पैटर्न आपको बताना चाहूंगा, जिस पैटर्न को हम कहते हैं, यहां पर ही मैं बता दूंगा। ये एक कैंडल है और ये एक और कैंडल बनी, इसे कहते हैं, ये अगर समझो बुलिश कैंडल है, मार्केट का ट्रेंड ऊपर का था, ये बेरिश कैंडल है, ठीक है। इसे हम बोलेंगे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? बहुत सारे जन जो गूगल से सीखते हैं, वो ये कैंडल को देखते ही इधर ही जंप कर देते हैं, अरे बेरिश एंगल्फिंग मार्केट में मंदी है, सेल करो, ये करो, वो करो। नहीं, आपको थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा पेशेंस, क्योंकि पेशेंस ही है मार्केट में। जैसे मैंने पहली स्लाइड में दिखाया था कि मार्केट में इट वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेन काम, रहना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न पे कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है। जब ये नेक्स्ट कैंडल बनेगी, जो इस कैंडल के नीचे क्लोज हो गई, ये बेरिश कैंडल है, समझो ओपन इधर हुआ, फिर से इस कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहां आपको कंफर्मेशन मिल गया। यहां पर ट्रेंड पॉजिटिव था, पॉजिटिव ट्रेंड के बाद में बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, इसके बाद में ट्रेंड रिवर्स हुआ। तो यहां आपको कंफर्मेशन मिल गया कि ओवरऑल जो रुझान है वो अभी चेंज हो गया। ये आप डेली चार्ट पे कर सकते हो, आप आवरली पे कर सकते हो, 15 मिनट्स पे भी कर सकते हो, या आप 5 मिनट्स पे भी कर सकते हो। इसमें कोई भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आप ट्रेडर है या आप अपने क्लाइंट को एडवाइस करने चाहते हैं इंट्राडे के लिए, कि आप पोजिशनली ट्रेड कर रहे हैं, जो भी चीज के लिए। तो इस तरीके से आप बेरिश एंगल पे, सिमिलरली
बुलिश एंगल्फिंग क्या होता है, यहाँ पे ट्रेंड नीचे का है, ये एक कैंडल बनी, इसके बाद में एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी, यहाँ पर है ओवरऑल ट्रेंड। यहाँ पर बुलिश, जब भी ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, इसे हम कहते हैं, ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, इसे हम कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद में कंफर्म करता है कि यहाँ से शायद ट्रेंड ऊपर का रिवर्स हो सकता है, तो ये होता है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अभी पैटर्न समझ में आया? तो हमने क्या क्या पैटर्न देखे, हमने हैमर देखा, हैंगिंग मैन देखा, डोजी देखा, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न देखा, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देखा। ऐसे बहुत तरीके के पैटर्न है। एक इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्विकली। समझिए एक बना, इसके बाद में एक छोटा कैंडल ऊपर बना, ठीक है, और इसके बाद में गैप के साथ, ये गैप दिख रहा है आपको, गैप है यहाँ पर, गैप के साथ नीचे एक बेरिश कैंडल बना। इस पैटर्न को, ये 3 कैंडल का पैटर्न है, इस पैटर्न को हम कहेंगे इवनिंग स्टार। कैंडलस्टिक में सबसे बढ़िया बात ये है कि सबके नाम बहुत मजेदार है। अगर आप देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जब बना था कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक साइंस है ये, जो ये डिस्कवर हुआ था जापानीज इकोनॉमी में, आई थिंक 16th सेंचुरी में, जब मिलिट्री रूल थे। तो इसलिए आप बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न जो देखेंगे वो मिलिट्री के बेसिस पे है। जैसे 3 व्हाइट सोल्जर्स मिलिट्री टर्म है, ठीक है, उस प्रकार से बहुत सारे नाम जो दिए गए हैं। हैंगिंग मैन मिलिट्री टर्म है, हैमर, तो उस प्रकार से नाम दिए गए जो कि उस समय में यूज होता था, मिलिट्री कल्चर था, इस कारण से ये सब पैटर्न्स उस तरीके से। और ये डेवलप हुआ था राइस ट्रेडिंग के वक्त। तो वहां पर जो इस टेक्निक को जानते थे, उन्होंने बहुत पैसा कमाया ये सिंपल मेथड को यूज करके राइस ट्रेडिंग में। धीरे धीरे फिर स्टीव निसन जो ऑथर है कैंडलस्टिक के, उन्होंने समझा जापानीज इकोनॉमी में किस तरीके से इसे यूज किया जा रहा है, और फिर उन्होंने एक बुक लिखी जो इंग्लिश में थी। उन्होंने पूरी बुक खुद के इंग्लिश में, जापानीज लैंग्वेज उन्हें आती नहीं थी, उन्होंने ट्रांसलेटर हायर किया, समझा, और फिर उन्होंने एक इंग्लिश में बुक लिखी समझने के बाद। तो एक इनोवेशन है, और हम वो चीज को डिस्कस कर रहे हैं। एक चीज जो बहुत सारे ट्रेडर्स मिस कर जाते हैं वो ये है कि कैंडलस्टिक पैटर्न खाली देख के ट्रेड नहीं करना है। कैंडलस्टिक पैटर्न बन कहां आ रहा है वो देखना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है, देखिए, मैं आपको पहले के चार्ट पे ले जाता हूं वापस। यहाँ पर मैं ये सब निकाल देता हूं, ठीक है, एक सेकेंड, इरेज ऑल इंक। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न बन कहां रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे? यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं कि ये एक मॉर्निंग स्टार वाला पैटर्न बना, ठीक है। मॉर्निंग स्टार का मतलब क्या हुआ, ओवरऑल ट्रेंड नीचे का था, यहां पर नीचे एक छोटा स्टार बना, और यहां पर फिर एक बुलिश कैंडल बनी, इसे हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार। एक स्माइली भी दिख रही है ना आपको, ओके। इसे मॉर्निंग स्टार या स्माइली पैटर्न आप बोल दीजिए, जो भी आपको बोलना है, जो नाम आपको पसंद है वो दे सकते हो। तो यहां पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना। इनफैक्ट अगर आप नजर डालें, ये वीकली, पहला वीकली क्लोज था जो प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर हुआ। ये पूरे के पूरे डाउन ट्रेंड में एक भी वीकली क्लोज प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं था। तो अगर आप देखेंगे तो पहला वीकली क्लोज प्रीवियस हाई के ऊपर हुआ, और साथ ही में ये एक चैनल सपोर्ट के, तो यहाँ पर चैनल ट्रेंड लाइन बने, समझो आपने ये लो कनेक्ट किया और ये लो कनेक्ट किया, और ये ट्रेंड लाइन को आगे एक्सटेंड की, तो आपने क्या देखा, मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो बना है वो डिमांड लाइन के पास में है, सप्लाई लाइन के पास नहीं, डिमांड लाइन के पास। तो मुझे बताइए कि क्या मैं बोल सकता हूं ये पैटर्न एक सिग्निफिकेंट एरिया के पास में बना है? तो ये पैटर्न सही होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। आर यू विथ मी? समझ में आया?
ये जो पैटर्न मॉर्निंग स्टार का बना, या आप इसे डोजी भी बोल सकते हैं। चलिए डोजी कैंडल बनी, डोजी कैंडल मतलब जहां ओपन हुआ वहीं क्लोज हो गया उसके आसपास। ये डोजी बनी एक डिमांड लाइन के पास में, साथ ही में नेक्स्ट डे पे ये कंफर्मेशन कैंडल मिली। क्या मैं यहाँ लॉन्ग जा सकता हूँ? कब तक लॉन्ग रहूंगा? जब तक मुझे वीकली क्लोज प्रीवियस वीक के लो के नीचे नहीं मिलती है, मैं लॉन्ग रह सकता हूँ। सिंपल है। इतना इजी मेथड मैं आपको दे रहा हूं यही बताने के लिए कि कैंडलस्टिक ट्रेड भले ही आप शायद करते होंगे, लेकिन आप आज तक ये भूल गए हैं कि इसे कहां पर देखना इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे बताइए, मॉर्निंग स्टार पैटर्न अगर इस एरिया में बनेगा, क्या वो इंपॉर्टेंट होगा क्या? मॉर्निंग स्टार रेजिस्टेंस लाइन बोलते हैं इसे हम, जहां मंदी वाले बैठे हुए हैं, यहाँ मंदी करने के लिए, यहाँ तेजी करने के लिए बैठे हुए लोग। तो जहां मंदी वाले ऊपर बैठे हुए हैं मंदी करने के लिए, अगर उस एरिया में वहां पर मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न बनेगा तो आप बुलिश होंगे क्या? नहीं, क्योंकि सिग्निफिकेंट एरिया क्या है, ये रेजिस्टेंस वाली है। तो यहां पर अगर इवनिंग स्टार वाला पैटर्न बना या बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना तो आप मंदी कर सकते हैं। समझ में आया? यहां पर अगर आप ये देखेंगे, ये जो दो कैंडल पैटर्न बनी है ना, इसे बेरिश एंगल्फिंग कहते हैं। और इसके बाद में ये कैंडल के नीचे जब ये कैंडल गई, तो आप इधर सेल करके पूरे के पूरे 8 हफ्तों तक आप सेल में थे। मतलब बाजार में पुल बैक आया सेल करो, पुल बैक आया सेल करो, और आपने वो किया। और ओवरऑल आपने ट्रेंड रिवर्स कब किया? जब आपने मॉर्निंग स्टार बना, जो पैटर्न बेरिश एंगल्फिंग से शुरू हुआ, मॉर्निंग स्टार से खत्म हुआ, जो रेजिस्टेंस लाइन से शुरू हुआ, सपोर्ट या डिमांड लाइन पे खत्म हुआ, वो ट्रेंड। समझ में आया? इतना सिंपल वे से अगर आप बाजार को देखेंगे बिना कुछ कॉम्प्लिकेशन किए। देखिए कि जैसे कि मैंने बताया कैंडल स्टिक, तो आप कहीं भी, मैंने भी बुक लिखी है उसके अंदर भी मैंने एक्सप्लेन किया कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है। लेकिन कैंडल स्टिक पैटर्न कहाँ बनता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ में अभी हम आगे बढ़ेंगे, एक टेक्निक अप्लाई करेंगे। अभी तक हमने क्या क्या अप्लाई कर दिया वो समझते हैं। हमने ट्रेंड लाइन देखा, इसे ट्रेंड लाइन कहते हैं। डिमांड लाइन देखा, रेजिस्टेंस लाइन देखा, ठीक है। हमने ये समझा कि ओवरऑल बाजार का ट्रेंड कैसे समझ में आया, हायर हाई हायर लो, तो दाउ थियरी को समझा। फिर हमने समझा कि ओवरऑल बाजार का दाउ थियरी से तो समझ में आया, लेकिन कैंडल पे देखिए अगर क्लोज प्रीवियस हाई के ऊपर है मतलब ट्रेंड ऊपर का है, कभी तक, जब तक क्लोज प्रीवियस कैंडल के नीचे नहीं होता है। वो भी समझ में आया। अभी मैं एक चीज आपको वापस से पूछूंगा, ये सब निकालता हूं मैं, और आप मुझे बताओगे कि आप क्या करोगे वो समय पे। समझो, ओवरऑल बाजार का ट्रेंड ऊपर का है, ठीक है, ये तो प्राइमरी ट्रेंड बाजार का ऊपर का है। यहां पर एक कैंडल बनी ऐसी, ठीक है, फिर ट्रेंड ऊपर का चला गया। क्या मैं कह सकता हूं ये हायर है हायर लो ओवरऑल बन रहा है तो ऊपर के ट्रेंड है? फिर कैंडल बनी बेरिश, और फिर ये कैंडल बनी बेरिश इधर। अभी आप मुझे बताओ, क्या आप यहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हो कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखोगे? सोचो, प्राइमरी ट्रेंड क्या है? अप। प्राइमरी ट्रेंड अगर अप है और बेरिश कैंडल बनी है, इसका मतलब हुआ कि आप अगर सेल करके पैसा कमाना चाहते हो तो फटाफट प्रॉफिट बुक करो और निकल जाओ। लेकिन यहां पर अगर आपको बाय अपॉर्चुनिटी मिली वापस से, तो वहां पर पैसा ज्यादा बनेगा। उस डायरेक्शन में ट्रेड करके आप बेटर रिजल्ट्स पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड ऊपर का है, आप सेकेंडरी ट्रेंड में शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हो, कर सकते हो,
लेकिन अच्छा पैसा नहीं बनेगा। सेम चीज यहां पर प्राइमरी ट्रेंड ऊपर का है, शॉर्ट टर्म में सेल करके पैसा कमाना है, ठीक है, तो छोटी पोजीशन रखनी है, पोजीशन साइजिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। यहाँ छोटी पोजीशन रखनी है, पोजीशन साइजिंग कम करनी है और फटाफट प्रॉफिट बुक करके निकलना है। लेकिन जब प्रॉफिट वापस से ट्रेंड ऊपर का रिवर्स हुआ तो आपको पोजीशंस लेके साथ में चलिए। नाउ ये मेथड कभी तक चलेगा जब तक आप लोअर हाई और लोअर लो नहीं देखते हैं। जब ये फॉर्मेशन हो जाएगा आप इस मेथड से चेंज करेंगे। आप अभी सेलिंग अपॉर्चुनिटी बाजार में देखेंगे। कब तक? जब तक वापस हमें हायर हाई हायर लो नहीं मिलता है। समझ में आया? बहुत ही सिंपल वे से अगर आप ऐसे ट्रेड करेंगे या निवेश करेंगे तो ऐसा बन सकता है। नाउ इसी कंसेप्ट को हम साथ में एक और टेक्निक अप्लाई करेंगे जिसे बॉलिंगर बैंड्स कहा जाता है। अभी हमने एरिया ऑफ सिग्निफिकेंस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझी, लेकिन आप बोलोगे यार मार्केट तो इधर है, अब ट्रेंड लाइन तो इतनी दूर है, बीच में क्या करें? तो बॉलिंगर बैंड्स अप्लाई करेंगे। बॉलिंगर बैंड्स होता क्या है? बॉलिंगर बैंड्स का मतलब होता है एक मूविंग एवरेज आप बना दो। ये जो सेंटर लाइन देख रहे हैं इसे हम कहते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज आपको शायद पता होगा, नहीं तो हम इसके ऊपर और डिटेल में डिस्कशन करेंगे कल के दिन में, जहां हम मूविंग एवरेज, आरएसआई और दूसरे इंडिकेटर को अप्लाई करेंगे, एमएसीडी को समझेंगे कि कैसे उसे अप्लाई करना है और किस तरीके से देखना है। तो फिलहाल हम बॉलिंगर बैंड को समझने की कोशिश करते हैं। बॉलिंगर बैंड का मतलब है यहाँ पर एक मूविंग एवरेज है बीच में, इस मूविंग एवरेज के 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर, ये है 2 स्टैंडर्ड डिविएशन। आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, आपको याद नहीं रखना है, खाली मैं आपको बता रहा हूं आपके नॉलेज के लिए। 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर है और ये नीचे की लाइन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे है। ये चार्ट पे आप ऑटोमेटिकली प्लॉट कर पाएंगे, जैसे कि मैंने बताया सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जो आप जो सॉफ्टवेयर है कुंवर जी के पास, वो भी यूज करके ये प्लॉट कर सकते हैं, आपको कुछ करना नहीं है। इसमें समझने वाली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर आप देखेंगे 90% ऑफ द टाइम या 95% ऑफ द टाइम बाजार ये दो स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच में ही चलता है। मतलब ना ये इस बैंड को ऊपर ब्रेक करता है और ना ये नीचे के बैंड को नीचे ब्रेक करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा नहीं कि कभी होता ही नहीं है, लेकिन जब होता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के वक्त होता है। तो ये जो हुआ था वो इस एरिया में हुआ था खाली। लेकिन अगर आप पूरे चार्ट पे देखेंगे अक्टूबर से लेके अभी तक प्राइसेस इसी बैंड के बीच में चल रहे हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन, अप ट्रेंड के वक्त प्राइसेस मिडल ऑफ द बैंड, ये जो मिडल ऑफ द बैंड और अपर बैंड के बीच में चलते हैं। करेक्शन के वक्त प्राइसेस या तो साइडवेज होते हैं तो ये बैंड के ऊपर और बीच में चलते हैं, या मिडल और लोअर एंड ऑफ द बैंड के बीच में चलते हैं। फिर से अप ट्रेंड के वक्त प्राइसेस मिडल और अपर एंड ऑफ द बैंड के बीच में चलते हैं। देख रहे हैं आप, मिडल और अपर बैंड के बीच में ही है। इनफैक्ट आपने अगर देखा होगा पूरे समय में निफ्टी डेली चार्ट है ये, एक भी क्लोज एक भी क्लोज मिडल बैंड के नीचे नहीं किया है। क्या आप देख पा रहे हैं? एक भी क्लोज मिडल बैंड के नीचे नहीं किया, मतलब जैसे ही आपको यहां पर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। ओके, तो बैंड सही है। यहां पर आप देखेंगे तो एक मॉर्निंग रिवर्सल पैटर्न बना, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, यहां पे वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। समझ में आ रहा है आपको? और होता क्या है मालूम है, हम यहां बाय करने की कोशिश करते हैं रेजिस्टेंस के पास नहीं, मिडल ऑफ द बैंड के पास बाय करो जब अप ट्रेंड में है। और जब भी साइडवेज हो जाता है मार्केट, इसका मतलब बाजार, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो बॉलिंगर बैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। मैं आपको अभी प्रैक्टिकल चार्ट पे लेके चलता हूं वापस से, जहां पे हम इस टेक्निक को सिंपल वे से वापस अप्लाई करके देखने की कोशिश करते हैं। तो मैं वापस शेयर कर रहा हूं मेरी स्क्रीन इन्वेस्टिंग की, यहां पर
अभी मैं यहाँ पर डेली चार्ट पे हूँ। मैं यहाँ पर एक इंडिकेटर डाल रहा हूँ जिसे हम कहेंगे बॉलिंगर बैंड। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ जाना है, बॉलिंगर बैंड्स पे डालना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप बॉलिंगर बैंड्स पे डाल दिया, ये प्लॉट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी मैं आवरली चार्ट पे जाऊंगा। आवरली चार्ट पे अगर मैं जाके देखता हूँ, ठीक है, क्या समझ में आता है मुझे? जब ट्रेंड अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, तब बाजार किस तरीके से मूव होता है आप देख पा रहे हैं? ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, मिडल ऑफ द बैंड के बीच में और अपर एंड ऑफ द बैंड के बीच में, यहीं पे मूव हो रहा है। जब नीचे आया तो क्या आप देख पा रहे हैं, लोअर एंड ऑफ द बैंड पे सपोर्ट ले रहा है और फिर वापस बाउंस बैक हुआ। तो अगर मैं इसी कैंडलस्टिक टेक्निक को, जो अभी तक मैंने समझी, इसके साथ में मैं इस टेक्निक को बॉलिंगर बैंड के साथ कंबाइन करता हूं, तो बहुत ही बेहतरीन ट्रेड सेटअप मुझे मिल सकता है। कैसे? अभी अगर मैं देखूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं ये डोजी कैंडल बनी, बहुत बड़ी डोजी कैंडल, और नेक्स्ट डे पे डायरेक्टली गैप अप होके बाजार फिर से बैंड के अंदर आ गया? क्या मैं यहाँ लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकता हूँ और ये क्लोज भी प्रीवियस हाई के ऊपर हुआ? तो अभी मैंने तीन टेक्निक आपको कंबाइन कर दी। पहली टेक्निक कि ये बैंड के नीचे से रिवर्स होके ऊपर आया। दूसरी टेक्निक, इसने क्लोज प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर किया। तीसरी टेक्निक, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल मॉर्निंग स्टार एक स्माइली बना वापस, स्माइली फेस, मतलब पॉजिटिव। और ये सब हुआ बैंड के लोअर एंड से। सेम चीज अगर मैं यहां देखूं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। सेम चीज यहां देखूं तो ओवरऑल डाउन ट्रेंड था, बैंड के यहाँ सपोर्ट लिया लोअर एंड ऑफ द बैंड पे, फिर पॉजिटिव रुझान इमर्ज हुआ। यहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो वही चीज देखने को मिली। ओवरऑल नीचे आया, मॉर्निंग स्टार, ये मॉर्निंग स्टार नहीं कहेंगे लेकिन उसी तरीके का एक पैटर्न बनाया, रिवर्सल हुआ और पैटर्न ऊपर की ओर गया। इसका उल्टा होगा बैंड के रेजिस्टेंस पे। लेकिन एक चीज समझो, ओवरऑल ट्रेंड क्या है? ऊपर का। जब ओवरऑल ट्रेंड ऊपर का है तो अपॉर्चुनिटी बेटर बाय में मिलेगी, सेल में नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको सेल ट्रेड लेना है तो आप इस तरीके से देख के सेल ट्रेड ले सकते हैं। दूसरी चीज, जब बाजार साइडवेज में है, क्या क्या आप देख पा रहे हैं ये रेंज में है, तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई पूछे यार बाजार का रेंज क्या है, तो आपको किसी एनालिस्ट को पूछने की जरूरत नहीं है। आप बॉलिंगर बैंड डाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल बाजार का रेंज क्या है और उसी रेंज में मूव हो रहा है। देखिए, जब ओवरऑल ट्रेंड ऊपर के बैंड और लोअर और एंड ऑफ द बैंड के बीच में है, तब आपको समझ जाएगा कि ये साइडवेज में है। जब ये अप ट्रेंड में है तो मिडल और अपर एंड ऑफ द बैंड में है। आपको समझेगा कैसे कि ये डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है? फिर डाउन ट्रेंड शुरू होने के वक्त आप अगर आप ऐसा देखेंगे कि मार्केट मिडल और लोअर एंड ऑफ द बैंड के बीच में चलने लगा है, इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड है। इसका मतलब आपको सेल करके पैसा कमाना है। समझ में आया? तो इस तरीके से अगर आप यूज करेंगे कैंडलस्टिक को और साथ में बैंड के मेथड को, तो बहुत ही बेहतरीन ट्रेड सेटअप डिराइव कर सकते हैं। अभी फिलहाल मार्केट रेंज में फंसा हुआ है। क्यों रेंज में फंसा हुआ है? आप देख सकते हैं कि इधर ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे सपोर्ट ले रहा है। तो अगर रेंज में है तो क्या मैं बोल सकता हूं ऑप्शन सेल करके पैसा कमा सकते हैं? भले ही मार्जिन ज्यादा लगेगा, लेकिन क्या ये बाजार ऑप्शन बायर्स के लिए है? नहीं। लेकिन इंट्राडे में बन सकता है। सी देखिए, आपको समझना होगा अभी दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है मालूम है? आप डेली टाइम फ्रेम देख के 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहे हैं, आप 10 पॉइंट के लिए निफ्टी पे ट्रेड ले रहे हैं डेली को देख के नहीं। तो जब मैं ये बता रहा हूं कि बाजार रेंज में है, मैं पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। इंट्राडे में हो सकता है आपको ऑप्शन बाइंग करके अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन वो इंट्राडे में। लेकिन पोजिशनली अगर आप ट्रेड करें 4 दिन, 6 दिन, 3 दिन के होराइजन से, अगर आप बाय करके ऑप्शन को चलेंगे तो पैसा नहीं बन रहा है, क्योंकि बाजार रेंज में फंसा हुआ है। यही चीज आप डेली चार्ट पे जाके देखेंगे
तो आपको पता चलेगा कि ऊपर का रेजिस्टेंस कहाँ है। ऊपर का रेजिस्टेंस अभी बाजार के लिए डेली बॉलिंगर बैंड है, उसका रेजिस्टेंस आ रहा है 15,900 पे। मिडल ऑफ द बैंड पे सपोर्ट ले रहा है जो कि है 15,680 के आसपास। लोअर एंड ऑफ द बैंड का सपोर्ट है 15,500। अभी इस इंफॉर्मेशन को हमें कैसे यूज करना है वो देखना है। तो अगर आप पोजिशनली ऑप्शन राइट करना चाहते हैं तो 15,500 का नीचे आप पुट राइट कर सकते हैं, और 15,900 या 16,000 के ऊपर आप कॉल राइट कर सकते हैं। लेकिन बाजार का रुख पॉजिटिव है तो कॉल आपको थोड़ा दूर का राइट करना होगा। ये मैं ऑप्शन के नजरिए से बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप ऑप्शन नहीं, नॉर्मल ट्रेड करना चाहते हैं तो डेली चार्ट पे देख के ये लग रहा है कि मार्केट अब फिलहाल के लिए रेंज में रह सकता है, सीमित दायरे में रह सकता है, क्योंकि ये फंस गया है। अपर ऑफ द बैंड 15,900 और मिडल ऑफ द बैंड 15,700। तो 15,700 से 15,900 के बीच में फिलहाल फंसा हुआ है। ट्रेंड कब इमर्ज होगा? जिस दिन मैं देखूंगा यहां पर एक कैंडल बनेगी, वो कैंडल अगर क्लोज होती है 15,900 के ऊपर, ठीक है, तब जाके मुझे पता चलेगा कि यहां पर वापस से ट्रेंड इमर्ज होने की गुंजाइश है। तो ट्रेंडिंग मूव कैप्चर कैसे करेंगे? जब हम 15,900 के ऊपर पहला क्लोज देखेंगे, वहां पर हम ट्रेंडिंग मूव कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। वो एक ब्रेकआउट होगा, लेकिन हमें डेली चार्ट पे क्लोज चाहिए 15,900 के ऊपर। वो कल हो कि 10 दिन बाद हो, फिलहाल तो वो लेवल इस बॉलिंगर बैंड के बेसिस पे बनता है। डाउन ट्रेंड इमर्ज होने के लिए हमें 15,500 के नीचे क्लोज चाहिए। क्यों क्लोज चाहिए? क्योंकि आप देखोगे कि स्पाइक्स आके शायद, जैसे आपने इधर देखा, स्पाइक आके नीचे जाके फिर रिवर्स होता है। तो 15,500 के नीचे क्लोज होगा और नेक्स्ट डे ने अगर वो लो को निकाला तो कंफर्मेशन डन। खाली क्लोज के बाद कंफर्मेशन मुझे नेक्स्ट डे कैंडल के बेसिस पे चाहिए। क्यों? देखिए, यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं, ये कैंडल आप देख रहे हैं, इसने बॉलिंगर बैंड के नीचे क्लोज किया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने नीचे ब्रेक दिया क्या? नहीं। इस कैंडल ने क्लोज किया? नहीं। इस कैंडल ने बैंड के नीचे क्लोज किया? नहीं। इस कैंडल ने बैंड के नीचे क्लोज किया? नहीं। इस कैंडल ने क्लोज किया लेकिन नेक्स्ट डे वापस एक बैंड के नीचे गया? नहीं। इतना सिंपल मेथड है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इतना इजी वे से अगर आप बैंड, कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रेंड को समझ के ट्रेड करेंगे तो पैसा बना सकते हो। लेकिन आप अगर इंपल्सिव होके ट्रेड करेंगे, बिना इस टेक्निक को समझे, बिना इस मेथड को समझे, तो पैसा गवा भी सकते हो। सिमिलरली आवरली चार्ट पे है, 15 मिनट्स पे चलते, चलिए एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेड पे चलते, 15 मिनट्स की चार्ट पे। क्या मैं ये बोल सकता हूं, जब ये डाउन ट्रेंड था, अगर आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड में बाजार मिडल ऑफ द बैंड और लोअर बैंड के बीच में चलता है। तो डाउन ट्रेंड के वक्त आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखोगे तो जैसे ही मिडल ऑफ द बैंड पे आया, बेरिश कैंडल बनाई, नेक्स्ट कैंडल ने नो निकाला, सेल। तो यहां पर जब मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, आप केयरफुल रहोगे, समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कैंडलस्टिक सब जन जानते हैं, देख भी हर जन रहा है, लेकिन सही नजरिए से अगर आप देखोगे तो ही आप पैसा कमा पाओगे। ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न इसीलिए आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी क्योंकि ओवरऑल रुझान नेगेटिव था। इसीलिए आपने इस पैटर्न पे ट्रेड भी लिया होता तो आपको पैसा नहीं बना। लेकिन इवनिंग स्टार अगर बनी तो आपको पैसा बनेगा क्योंकि यहां पर ओवरऑल रुझान नेगेटिव है। ये कैसे समझा? आवरली कैंडल नेगेटिव थी, डेली चार्ट पे नेगेटिव था, लेकिन इस दिन से 23 तारीख, ये कल के दिन से अगर आप देखोगे, ओवरऑल सपोर्ट कहां लिया बाजार ने? मिडल ऑफ द बैंड पे, और बाउंस बैक हुआ। तो मतलब अभी अगर आपको मॉर्निंग स्टार मिडल बैंड पे बना, आप ट्रेड ले सकते हो बाय में, यस। यहाँ पर आपको कैंडल बुलिश मिली, ट्रेड ले सकते हो, यस। यहाँ पे फिर से डीप आई, अभी तो फिलहाल रेंज में है, लास्ट 1 घंटे 2 घंटे में रेंज में था, लेकिन ओवरऑल आपको बुलिश कैंडल पे बाय कर सकते हो। यही चीज आप 5 मिनट पे अप्लाई करो,
बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर आप देखोगे आवरली कैंडल बाय में है, पूरे दिन में एक भी क्लोज प्रीवियस लो के नीचे नहीं किया, तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हो। फिर आप 15 मिनट पे जाओगे, आपको जैसे ही एक पैटर्न बना, आपने यहाँ पे बाय कर लिया। आप 5 मिनट पे जाओगे और आप देखोगे कि आपको सेल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आवरली पॉजिटिव है, 15 मिनट पॉजिटिव है, आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। बाइंग अपॉर्चुनिटी 5 मिनट पे कैसे मिली? नीचे आया, लोअर एंड ऑफ द बैंड पे सपोर्ट लिया, बुलिश पैटर्न बनाया, ये स्माइली बना, फिर से बाय। समझ में आया? तो ये सिंपल टेक्निक अगर आप कंबाइन करेंगे तो बहुत ही आसानी से ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, चलिए वापस से मेरे प्रेजेंटेशन पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ये चीज जो हमने अभी जस्ट देखी। यहाँ पर जहां मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ, वही चीज डेली पे देखी, वही चीज आवरली पे देखी, वही चीज 15 मिनट पे देखी, वही चीज 5 मिनट। अभी एज अ ट्रेडर आपका इंटेंशन होना चाहिए कि भाई अगर आप क्या ट्रेड करना चाहते हैं, स्काई इज द लिमिट। आप 10 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करो कि 15 मिनट पे, कंसेप्ट वही चीज आपको यहां देखने को मिलती है। तो ये जो चीज थी, ये थी बॉलिंगर बैंड्स और कैंडल स्टिक्स जो हमने कंबाइन की। ये एक चार्ट मैंने पर्पसली रखा है। इस चार्ट में आप जो वर्टिकल लाइंस देख रहे हैं, इसे साइकिल लाइंस कहा जाता है। हम इस पे चर्चा करेंगे डे 3 के दिन, आज नहीं। डे 3 के दिन इस चीज पे चर्चा करेंगे, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप बने रहिए। खाली आज अटेंड करके कल से सुबह से ट्रेड करना चालू कर दिया और बाकी कल का जो हम सेशन करने वाले हैं परसों का, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो अगर आपके कोई और किसी और को भी जो मेंबर है कुंवर जी के, उनको इनवाइट करिए। इस टेक्निक्स के ऊपर हम और चर्चा करेंगे बहुत डिटेल में। अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने देखा ट्रेंड क्या है डाउ थियरी के बेसिस पे, हायर हाई हायर लो कैंडल पे बना है वो देखा। साथ में हमने देखा कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बने। फिर हमने देखा कि पैटर्न बन कहाँ रहा है। ठीक है, पैटर्न खाली बनने पे ट्रेड नहीं है, पैटर्न बना कहाँ है वो भी बहुत सिग्निफिकेंट है। कि पैटर्न खाली ओवरऑल अगर अप ट्रेंड में है और रेजिस्टेंस के पास मॉर्निंग स्टार बन रहा है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर डाउन ट्रेंड में है और सपोर्ट के पास में अगर पैटर्न बन रहा है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर अप ट्रेंड में सपोर्ट के पास में आपको पैटर्न बन रहा है, मॉर्निंग स्टार, बुलिश एंगल्फिंग, डोजी, हैमर, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। समझ में आया? इज इट इजी? सिंपल एकदम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं वापस से। और थोड़ा सा और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी चीज को अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो इस तरीके से आप बाय पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। ये पहले का चार्ट है, मई 2020 में जब मार्केट कहाँ था। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं ये कि अभी के समय में चल रहा है, पहले नहीं चलता था या आगे नहीं चलेगा। ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ऊपर की ओर मार्केट ने क्लोज किया, हायर हाई हायर लो पैटर्न बना, और साथ में ये साइकिल लाइन है, वो हम अभी नहीं चर्चा करेंगे, वो बाद में करेंगे। उसके साथ में ऊपर की ओर बंद हुआ, तो सभी चीज जब सिंक में हो गई तो बाजार का रुख पॉजिटिव हो गया और वहां से ही हमने पॉजिटिव ट्रेंड इमर्ज होते हुए देखा और ऊपर की ओर मार्केट का मूवमेंट देखा। सिमिलरली रिलायंस है, ये चार्ट, ये बहुत पुराना चार्ट है, 2017 का अप्रैल। ये मैंने रिसर्च रिपोर्ट में, हमारी रिसर्च रिपोर्ट में पब्लिश की थी क्लाइंट्स के लिए 2017 में। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, और यही चीज मैं मेरे वेबिनार जो कंडक्ट करता हूँ उसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ बहुत डिटेल्ड में कि किस तरीके से आपको देखना है। यहाँ पे एक पैटर्न बना ट्रायंगल का, रिलायंस ने चैनल सपोर्ट लिया, ट्रेंड लाइन, डिमांड लाइन जो हमने डिस्कस किया आज के दिन में, वहीं से बाउंस बैक हुआ और उसके बाद से ओवरऑल ऊपर बाजार में ट्रेंड इमर्ज हो गया है। तो यहाँ पर देखने से ये पता चलता है कि ओवरऑल जो बाजार का ट्रेंड था वो पॉजिटिव हुआ, या रिलायंस का ट्रेंड पॉजिटिव हुआ और वहीं से बाइंग इमर्ज हुई ऊपर की ओर। तो इस तरीके से यहाँ पर बाई पोजीशंस बनती थी और हमने देखा है, पता है हमें कहां से कहां रिलायंस इंडस्ट्रीज ओवरऑल लॉन्ग टर्म में पहुंच चुका है। 2017 में बाय था, उसके बाद तो स्प्लिट हुआ, बोनस हुआ और वो सब। तो इस तरीके से आप सीख के ट्रेड ले सकते हैं। ये बहुत ही क्लासिक स्लाइड है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ, द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न। वेरी क्लासिक सिंग। एंड इसके साथ ही
मेरा ट्विटर हैंडल है एके ट्रेडिंग, क्याल आशीष मेरा ट्विटर हैंडल है। तो अगर आपको कुछ भी क्वेरी, डाउट कुछ भी है तो आप बेझिझक ट्वीट कर सकते हैं @क्याल आशीष। और अगर आप, मेरे पास 6 घंटे की कोई वीडियो एक्सेस है और भी काफी सारी चीजें, तो आप अगर ट्वीट करेंगे, माय टीम कैन सिलेक्ट अ गुड ट्वीट एंड देन गिव यू दैट एक्सेस आल्सो। लर्निंग कंटिन्यूड रखने के लिए क्या कर रहे हैं हम कि एक फॉर्म बनाया हमने wavestrategy.com/videos करके। ये जब हम एनएससी का सेशन कर रहे थे इसीलिए बनाया गया है, क्योंकि हमारा एम कैसी, आई एम अ सीएमटी एज वेल, हमारा एम है कि पीपल शुड बिकम एजुकेटेड अबाउट दिस ओनली। अगर आप एजुकेटेड बनेंगे, सिंपल मेथड्स को समझेंगे और अप्लाई करेंगे, इस मार्केट से पैसा निकालना पॉसिबल है। तो इफ यू वांट आप इस पे रजिस्टर कर सकते हैं एंड दिस इज प्योरली फ्रॉम वेव स्ट्रेटजी, नॉट फ्रॉम एनएससी या कुंवर जी के यहाँ से नहीं। वी विल शेयर अक्रॉस सर्टेन एडिशनल वीडियोस विथ यू, जिससे आप सीख पाएंगे ज्यादा और तरीके से। तो समय के अभाव के कारण हम बहुत कुछ कवर नहीं कर सकते, तो मैं आपको एक्सेस दूंगा 4-5 वीडियोस का जो आपके पास रहेगा, जिससे आप और आपकी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं। तो इंश्योर करिए आप जाके इस पे रजिस्टर कर सकते हैं, सिंपल फॉर्म है। और यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद में मेरी टीम आपको कांटेक्ट करके वो वीडियो एक्सेस आपको व्हाट्सएप कर देगी, लिंक्स आपको शेयर कर देगी जहाँ पे आप ये सब चीजें देख पाएंगे। ये मेरा कांटेक्ट डिटेल्स है, helpdesk@wavestudy.com ईमेल आईडी है, और ये फोन नंबर है 9920422202। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक या ट्विटर पे कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप टच में रह सकते हैं। और एक और फाइनल स्लाइड जो मैं बताना चाहूंगा एज अ डिस्क्लेमर, ये एनएससी की तरफ से है कि investment and securities are subject to market risk and this is purely from learning educational perspective। हमने जो स्टॉक्स के बारे में बात की वो लर्निंग के पर्सपेक्टिव से है, और कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पर बाय या सेल का। इट इज प्योरली फ्रॉम एजुकेशनल पर्सपेक्टिव एंड इट्स एन अमेजिंग initiative which is being taken by NSE brokers to ensure people become more and more learned and more educated, because इसमें सबका फायदा है। देखिए, अगर आप सीख के ट्रेड करेंगे तो जो आप कर रहे हैं उसे आप बड़ा कर सकते हैं और आप बने रहेंगे ब्रोकर के साथ में। तो इसमें ब्रोकर का वेस्टेड इंटरेस्ट है, लेकिन सीख के आप पैसा कमाएंगे तो ब्रोकर को वो भी पैसा कमाने मिलेगा। और फॉर अस, फॉर एक्सचेंज इट इज गुड बिकॉज एक्सचेंज पे वॉल्यूम्स बढ़ेगा। फॉर अस इट इज गुड बिकॉज आप जैसे लोगों के साथ में बातचीत करके मुझे भी मजा आएगा। तो हर चीज, हर जन का बेनिफिट है। अगर सीख के कोई ट्रेड करता है या निवेश करता है, फिर आपको न्यूज कुछ आ गई, इवेंट कुछ हो गया, उस पे किस तरीके से करना है, आप पैनिक नहीं होंगे, आपके पास एक मेथड होगा, एक सिस्टम होगा, उस तरीके से आप ट्रेड और निवेश कर सकते हैं। तो मैंने ये कोशिश की है कि ये 1.5 घंटे में थोड़ा समय था, उसमें एक सिंपल टेक्निक को कैंडलस्टिक और बॉलिंगर बैंड के बेसिस पे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और मैं समझने, अगर आपका कुछ भी क्वेरी है, डाउट है, आप अभी मुझे पूछ सकते हैं। सो कंट्रोल इज नाउ विथ, आई थिंक आई कैन पास ऑन द कंट्रोल इफ रिक्वायर्ड, या आई थिंक नैनिश या शिवम they can take it from here, and I hope it Yeah. was an interesting session. Yeah, thank you sir, it was a superb session। मुझे बहुत मज़ा आया, आई एम श्योर हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत मज़ा आया होगा। एंड आई एम वेटिंग टू सी यू ऑल टुमारो। वी कैन एंड द सेशन हियर आई थिंक। एंड एग्जैक्ट सर ने मतलब टाइमिंग भी आपका मतलब जो है कि आपने 6:29 को मुझे दे दिया है, तो 6:30 को हम ख़त्म भी कर सकेंगे। दैट्स ग्रेट, थैंक you sir, and I hope we are all ready for tomorrow's session। We'll all join in tomorrow at 5 with Ashish ji again taking over। Thank you so much sir, I श्योर, think we can end प्लेजर। here। Yeah। श्योर श्योर। और कोई भी देखिए डाउट है, क्वेरी है, अभी तो समय का अभाव है इसलिए ये नहीं कर पाए। आई कैन सी लॉट ऑफ यू आर शेयरिंग अक्रॉस योर फीडबैक। इट वाज अ वंडरफुल सेशन, जो फीडबैक आप शेयर कर रहे हैं। तो यही चीज मैं आपको खाली बताना चाहूंगा कि
ये लर्निंग कंटिन्यूड रखिए। कल जो हम डिस्कस करेंगे ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही डिफरेंट वे होगा। तो डोंट स्टॉप हियर, कीप द लर्निंग कंटिन्यूड। और कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली ट्वीट कर सकते हैं, मुझे मार्क करिए, एनएससी को मार्क करिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी कि उसे मैं रिप्लाई करूं, एंड वी विल रिस्पॉन्ड टू दैट। एंड डेफिनेटली रजिस्टर करिए सो दैट हम आपको और वीडियो एक्सेस ऐसे दे सकते हैं जहां पे आप सीख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ये प्लेटफॉर्म देने के लिए जहां पे मैं अपना व्यू प्रेजेंट कर पाया। थैंक्स टू शिवम Thank एंड you, sir. थैंक्स टू नैनिश फॉर फ्रॉम एनएससी। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you. Well, thank you, sir. थैंक यू।